Hello 10th class, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to your biology class and I am your educator Genia. Last video we were discussing about the human circulatory system. In that we had already discussed about the blood and blood vessels, the two components of human circulatory system. In today's video we will be covering the third component of blood circulatory system in humans, and that is heart. And we will also talk about the lymphatic circulatory system in humans. Stay tuned with me till the end of the video and let's get started. Okay guys, come on, let's start with the third component of human circulatory system, and that is heart. We all know that heart is a muscular organ. What do you mean by this? That it is made up of muscles. What kind of muscles? Yes, right, exactly. They are made up of cardiac muscles. You have studied this in the class 9th also. Cardiac muscles are the special muscles which form heart. Okay. The size of heart. What is the size of heart? The size of human heart is just as big as our clenched fist. What is this? जो हम कहते हैं हिंदी में बंद मुट्ठी होती है जितनी, उतना साइज होता है हमारे हार्ट का. Okay. So now let's see the next point. The heart of mammals and aves is of 4 chambers. Mammals and aves. Mind that here we are talking about mammals and aves. I hope you all remember that this is from the class 9th chapter diversification. Mammals, aves, reptiles, amphibians, fishes. We have studied all that in the animal kingdom, right? So mammals and aves do have 4 chambers in their heart. And what are they? Let's understand this. If this is heart and these are the 4 chambers, this is the right portion and this is the left portion, separated bilaterally, right side and left side. Okay. And horizontally, if you talk about, the upper is atrium and the lower is ventricle. These are the atriums and these are the ventricles. So these are the 4 chambers. So why there is a need of the right and left side? Because the right and left side of the heart will keep the separation between deoxygenated blood and oxygenated blood. Deoxygenated blood is the one carrying carbon dioxide and no oxygen, and oxygenated blood is the one carrying only oxygen, right? So right and left side का काम क्या है? Oxygenated और deoxygenated blood को separate करके रखना, इनकी mixing ना होने देना. Okay, so to prevent the mixing of oxy and deoxy blood, there is presence of left and right side. Okay, and this is very important. Now let's see why there is separation and why this is important. This is very important. You must remember this. The reason of separation of left and right side. This separation is important in both mammals and aves. Mammals and aves, as they are warm-blooded animals. Mammals and aves are the warm-blooded animals. What do you mean by that? It means these animals maintain a constant body temperature irrespective of environment. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जो मैमल्स और एव्स होते हैं, अगर हम अपना एग्जाम्पल लेके देखें ह्यूमंस का, तो हम क्या होते हैं कि अब जो बॉडी टेम्परेचर है हमारा, वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होता है? ऑब्वियसली नॉट, राइट. हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेंटेन रहता है, वो चेंज नहीं होता चेंजिंग एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ. अगर बाहर ठंड है, गर्मी है, वट एवर द टेम्परेचर इज अराउंड द सराउंडिंग्स, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा. सो उस बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, राइट, क्योंकि मेहनत का काम है. सो टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट इज देयर. और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? This will be provided by the oxygenated blood, right? This is very common thing. Oxygenated blood is the only thing that will provide the energy to the body cells, right? So this is all about the separation, why there is need of separation between oxy and deoxy blood in case of mammals and aves. Why so? Because we have seen that mammals and aves are the warm-blooded animals. Mammals and aves are the warm-blooded animals. That is, they maintain a constant body temperature irrespective of their environment temperature. For maintaining a constant body temperature, high energy requirement is there, and this will be fulfilled by the oxygenated blood.
राइट. सो देयर मस्ट बी एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और वो कैसे होगी? वो तभी होगी जब ऑक्सी और डीऑक्सी ब्लड एक दूसरे में मिक्स ना हो. वी ह्यूमंस कैन नॉट टेक अ रिस्क of mixing the oxy and deoxy blood. Please remember this, okay? So now let's talk about other cases also. The heart of amphibians and reptiles is of 3 chambers. Okay? Amphibians में आते हैं जैसे कि frog आता है, reptiles में snake, right? These are the common examples. इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है. रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन क्या है? क्या किसी को याद है? किसी को पता है? रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल. द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज ऑफ 4 चैम्बर्स. क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन इन केस ऑफ रेप्टाइल्स. द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज ऑफ 4 chambers. So the heart of fishes contain only 2 chambers. Alright. So this was all about the heart. We have seen that heart is a muscular organ. It is made up of cardiac muscles, special muscles of heart, right? Size of the heart just as big as our clenched fist. Heart of aves and mammals have 4 chambers. Why there is need of separation between the right and left, that is the deoxy and oxygenated blood. And then we have also seen the heart of other animals also, that is amphibian, reptiles and fishes. Okay, so now let's discuss or see the structure of heart and how the blood is being flown to the heart. Before starting with the structure of heart, let me tell you one more thing that is important. We all know that heart pumps the blood. Heart pumps the blood into various organs, right? So this pumping will occur with the help of contraction and relaxation. Continuous contraction and relaxation of the heart muscles. Contraction and relaxation of heart muscles. This contraction is known as, in terms of biology, it is called as systole, and relaxation is called as diastole. जब contract हो रहा है हार्ट का चैम्बर, उसको क्या बोल रहे हैं? सिस्टोल. और रिलैक्स हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं डायस्टोल. These 2 terms are important. ओके गाइस, तो फटाफट से हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसे है? हमें पता है हार्ट 4 चैम्बर का है. लेफ्ट राइट साइड्स हैं और एट्रियम और वेंट्रिकल है. ठीक है, टोटल 4 चैम्बर्स बना देते हैं हार्ट के. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन हार्ट ओनली, राइट? ओनली दिस इज इन योर सिलेबस. सो क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का? अपने आपको ये दिखा रही हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जो फ्लो ऑफ ब्लड है हम वो देखते हैं. हमें पता है जो डीऑक्सी ब्लड है वो कहाँ से आएगा? वेना कावा लेके आएगी. वेना कावास क्या है? वेना कावा इज द मेन वेन कैरिंग द डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट. Superior vena cava and inferior vena cava is present. Superior name suggests that it is taking the blood from the upper part of the body, that is above the heart, and inferior vena cava taking the blood or carrying the blood from lower part of the body, that is below the heart. So they are carrying the deoxy blood and draining it into the right atrium. This is right atrium. Alright, and then from this what happens? When this right atrium contracts, we all know that systole and diastole are the 2 functions performed by the heart muscles or the cardiac muscles. So when this right atrium contracts, blood is sent into the right ventricle. This is right ventricle. Alright, valves are present. These valves are present. This valve between the right atrium and right ventricle is called as tricuspid valve. Okay, what is the function of this valve? It is preventing the backflow into the atrium. Alright. From this right ventricle, this deoxy blood will be flown to the lungs for oxygenation with the help of these pulmonary arteries. We all know that pulmonary arteries are the exceptions in arteries as they are carrying deoxy blood. But normally the arteries are carrying the oxy blood. So pulmonary arteries are the one carrying the deoxy blood into the lungs. Okay, these from right ventricle, when the right ventricle contracts, the blood is being sent to the lungs with the help of pulmonary arteries. This oxygenated blood will be carried back to the heart by pulmonary veins. Pulmonary veins are again the exception in veins, as these pulmonary veins are carrying the
oxy blood, but normally the veins were carrying the deoxy blood na. So pulmonary veins carry the oxy blood from lungs to the left atrium chamber of the heart, and when this left atrium contracts, this oxy blood will be sent into the left ventricle. एंड फिर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा, ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड बॉडी में चला जाएगा, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू. एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है, मेन आर्टरी है, दैट इज कैरिंग द ऑक्सी ब्लड एंड सप्लाइंग इट टू द पार्ट ऑफ द बॉडी. द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अ वाल्व इज प्रेजेंट. दिस इज द वाल्व. दिस वाल्व इज कॉल्ड एज bicuspid valve, or you can also call it as mitral valve. Although this valves, the name of these valves are not in your syllabus or not mentioned in NCERT, but though I am describing you, I am giving you a bit of information, as this is not much complicated. Okay, this is not much difficult. So what is the function of this valve? Similarly, it will be similar to the tricuspid valve, as it is preventing the backflow of blood into the atrium when this will contract. Okay, here two valves are also present, aortic valve and pulmonary valve. This one and this one. इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन भी वही होगा. ऑब्वियसली हर वाल्व का वही फंक्शन है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सारा हमने देख लिया फंक्शन ऑफ हार्ट. हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, आई मीन हार्ट में जो ब्लड है वो किस स्टेप्स को फॉलो करके कहाँ से कहाँ आ रहा है और कहाँ से कहाँ जा रहा है. आई होप आप लोगों को ये इजी लगा होगा. बट इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर यू गाइज to make you understand well, so that you can draw the diagram of heart easily and quickly. I have mentioned that link in the description box also, and you can also tap on the right corner of a video. This structure of heart is very very important guys. I am telling you again and again, please बच्चे इन structure of heart को अच्छे से कर लेना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पक्का से पूछा जा सकता है. ठीक है, आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, इसलिए वीडियो अलग से बनाया आप लोगों के लिए. आप इसको सेपरेटली देख लो अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना प्लीज़ अच्छे से. सो ये स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड हाउ द हार्ट इज फंक्शनिंग. चलो बच्चा लोग, अब फटाफट से देख लेते हैं क्या स्टेप्स हैं ब्लड सर्कुलेशन की ह्यूमन बॉडी में. सबसे पहले क्या हो रहा है, लंग्स में से ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू. कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में. इसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है, उसको नाम दे दिया V1. ठीक है, ये कौन सा ब्लड है, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसके बाद क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड को एओर्टा के थ्रू. कहाँ जा रहा है वो ब्लड, बॉडी ऑर्गन्स में. बॉडी ऑर्गन्स में कैपिलरीज प्रेजेंट है, हमने देखा था. कैपिलरीज क्या करती हैं, एक्चुअल एक्सचेंज पॉइंट है वो, वहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का और डिफरेंट सब्सटेंसेस का ब्लड और बॉडी टिश्यू में. वहाँ पे क्या हुआ, ब्लड ने ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली. सो उसके बाद क्या होगा, वो डीऑक्सी ब्लड बन गया. फिर वो डीऑक्सी ब्लड वेना कावा की हेल्प से कहाँ चला गया, स्टेप नंबर 4 में, राइट एट्रियम में. ठीक है, राइट एट्रियम में चला गया. इसके बाद स्टेप 5 में क्या हुआ, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करा और ब्लड को कहाँ भेज दिया, राइट वेंट्रिकल में. ठीक है, राइट वेंट्रिकल इस टाइम पे रिलैक्स था, सो दैट वो ब्लड को कलेक्ट कर सके. उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और 6 स्टेप में कहाँ भेज देगा, लंग्स में भेज देगा. लंग्स में भेज देगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज. कौन सा ब्लड है ये सारा डीऑक्सी ब्लड है. कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए. किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू. ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो साइकिल है जो हार्ट और लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, इस साइकिल को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है, ये जो साइकिल है हार्ट और ये लंग्स वाला. ठीक है, ये पार्ट. और दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या है, जो हार्ट और बॉडी ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट है, इसको बोल रहे हैं सिस्टमिक, नॉट सिस्टमैटिक. ठीक है, ध्यान रखना, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं इसको. ओके, सो क्या हुआ है, ह्यूमन जो हार्ट है उसका जो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें ब्लड का, वो उस सर्कुलेशन को क्या बोला जा रहा है,
डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा इसमें दो तरह की सर्कुलेशन प्रेजेंट है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये सिर्फ किस केस में है? ह्यूमंस के केस में है। अगर हम फिशेस की या लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिनमें, दिस इज इन केस ऑफ मैमल्स। ठीक है, अगर हम फिशेस और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स इनकी बात करें जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है, उनमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट फिशेस, फिशेस में क्या है? ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट है। अभी हमने देखा था 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, 2 चैम्बर्ड है हार्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा? क्या हो रहा है? हार्ट जो है ये क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। कहाँ पे? लंग्स। वहाँ लंग्स तो प्रेजेंट नहीं है, वहाँ क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है जो कि लंग्स का काम कर रहे हैं। इन केस ऑफ फिशेस वी आर टॉकिंग अबाउट, उसमें क्या हुआ? गिल्स पे ऑक्सीजनेशन हो गया, फिर डीऑक्सी ब्लड ऑक्सी ब्लड में कन्वर्ट हो गया एंड देन वो कहाँ चला गया? डायरेक्ट बॉडी में, वापस दोबारा हार्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ये सिंपल साइकिल है, स्मॉल साइकिल है। इसको क्या बोल रहे हैं? सिंगल सर्कुलेशन। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट है? सिंगल सर्कुलेशन। एंड वी आर द एडवांस्ड एनिमल्स, और हम में क्या प्रेजेंट है? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, वाई वी आर कॉलिंग इट एज डबल सर्कुलेशन? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव. Please do remember this. Okay, I have put the another diagram here also that is a bit complicated, so that's why I have drawn this easier one. You can draw it as well, as this question is very important from the exam perspective, that what is double circulation or what is the process, or you can say steps of blood circulation in human body. So try making this diagram. This is easier one, and the image showing here is a complicated diagram. So don't you have to draw the heart, lung separately. Just draw this schematic diagram. Okay, that image is provided to you only for your better understanding. Okay, I hope this process is clear to you. What is double circulation? Why we are calling it as double circulation? Blood is being pumped twice in each cycle, 2 times in heart in one cycle. The question might come in this form like, why the blood circulation in humans is called as double circulation? Why? Because डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक साइकिल में ये पूरा जो अभी दिखाया है स्टेप 6 स्टेप्स वाला, ये पूरा एक साइकिल है। ठीक है, इस एक साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट में से 2 बार पास कर रहा है। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज डबल सर्कुलेशन, एज इट इज बीइंग पास टू द हार्ट ट्वाइस इन ईच साइकिल. So that's why we are calling it as double circulation. So yes, with this we have completed heart. हमने क्या देख लिया? हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने चैम्बर्स हैं, मैमल्स और एव्स में 4 चैम्बर क्यों हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में द नंबर ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट कम क्यों है, जो राइट एंड लेफ्ट सेपरेशन है हार्ट के स्ट्रक्चर में वो क्यों ज़रूरी है. राइट, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, जो राइट एंड लेफ्ट सेपरेशन है वो डीऑक्सी ब्लड को सेपरेट रख रहा है. जो ये सेप्टम है ये क्या कर रहा है? इस डीऑक्सी ब्लड को ऑक्सी ब्लड से सेपरेट रख रहा है. अगर ऑक्सी ब्लड मिक्स ही हो जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या है? हमें इतनी एनर्जी कहाँ से मिलेगी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. राइट, सो दिस इज़ वाई इम्पॉर्टेंट है ये सेपरेशन. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या है, उसका प्रॉपर डायग्राम आपको आना चाहिए. ऑल अबाउट द हार्ट एंड ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब एक चीज़ रह गई है बस, एंड दैट इज़ लिम्फ. And I have told you in the first video that this human circulatory system contains another system, and that is called as lymphatic system. So now let's talk about the lymphatic system. Lymphatic system includes lymph. So first one is lymph. What is lymph? We all know that arteries divide into arterioles and arterioles divide into capillaries. And हमें पता है कि capillaries में क्या होता है? एक्चुअल एक्सचेंज पॉइंट है कैपिलरीज. एक्सचेंज होता है वेरियस सब्सटेंसेस का ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में. ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता है. सो क्या होता है बच्चों, जो कैपिलरीज होती है ना उनकी वॉल्स में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं. पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से क्या होता है, जो फ्लूइड होता है ना ब्लड से वो लीक कर जाता है. ये सब क्या है ब्लू वाले, ये ब्लड सेल्स हैं. ठीक है, ब्लड सेल के कनेक्शन में होते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट में कैपिलरी वॉल्स. तो क्या होता है, जो ब्लड से फ्लूइड है वो लीक कर जाता है बॉडी सेल्स में. ठीक है, टिश्यू की सेल्स में. जो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स हैं
और वहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्लूइड होता है ये एक्यूमुलेट हो जाता है। सो इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, या फिर इसको लिम्फ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो लिम्फ क्या हो गया, लिम्फ एक येलो कलर का फ्लूइड है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें इट इज जस्ट लाइक ब्लड, बट इसमें क्या है, आरबीसीज एब्सेंट है, आरबीसी एब्सेंट, आरबीसी नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, फिर तो ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा कुछ। सो आरबीसीज आर एब्सेंट एंड द प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसीज आर प्रेजेंट। ओके, और प्लाज्मा में प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट है यहाँ पे, प्लाज्मा एक मेन कंपोनेंट है यहाँ पे, लेकिन प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में बहुत लार्ज प्रोटीन्स नहीं होते हैं लिम्फ के अंदर, बट इन केस ऑफ ब्लड्स दे आर प्रेजेंट। ओके, ब्लड डब्ल्यूबीसीज को और क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। ओके, सो ये हमने देख लिया कि लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड होता क्या है और ये कैसे आ रहा है, टिश्यूज के बीच में कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, सो अब देखते हैं व्हाई देयर इज नीड ऑफ दिस लिम्फ और द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फ है, जो ये लिम्फ है ये आगे जाके लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन हो जाता है, और फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे जाके क्या बनाती हैं, लिम्फ वेसल्स बना लेती हैं, और फिर लिम्फ वेसल्स आगे चलकर किस में कंबाइन हो जाते हैं, लिम्फ वेन्स। ये हमने क्या देख लिया, ये प्रोसीजर देख लिया। जो लिम्फ है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लिम्फ है वो ब्लड में मिक्स तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अभी लिम्फ अलग से ही रहेगा। ठीक है, लिम्फ के लिए एक अलग सिस्टम है, लिम्फ का जिसमें फ्लो होगा वो सिस्टम एक अलग सिस्टम है, और वो क्या है, लिम्फ जो टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया टिश्यूज के अराउंड, वो कहाँ चला जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन हो जाएगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे कंबाइन करके लिम्फ वेसल्स बना लेंगे, और लिम्फ वेसल्स आगे कंबाइन करके लिम्फ वेन्स फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, सो हमें लिम्फ पता लग गया क्या होता है, इट इज अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन, अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन। ओके, in the human body, another medium of circulation in human body। और जो फ्लो हो रहा है लिम्फ का लिम्फेटिक सिस्टम में, वो क्या, उसकी डायरेक्शन क्या है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, दैट मीन्स फ्रॉम बॉडी टू हार्ट ऑलवेज। बाई डायरेक्शनल नहीं है ब्लड के फ्लो की तरह, ब्लड तो बॉडी से हार्ट में, हार्ट से उसमें जा रहा है, बट ऐसा नहीं है इसमें बॉडी से हार्ट में ही यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही है लिम्फ का। ओके गाइज, अभी हमने क्या देखा कि जो लिम्फ है वो ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाएगा वापस, राइट, उसके लिए एक अलग सिस्टम चाहिए, तभी तो लिम्फेटिक सिस्टम एक अलग सिस्टम बन रहा है। तो उस सिस्टम में क्या होगा, जो लिम्फ टिश्यू के पास एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड क्या होगा, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, स्मॉल लिम्फ कैपिलरीज हैं, स्मॉल लिम्फ कैपिलरीज में चला जाएगा, और बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज कंबाइन करके क्या बना लेंगी, लिम्फ वेसल्स बना लेंगी। ठीक है, लिम्फ वेसल बन गया, और ऐसे बहुत सारे लिम्फ वेसल कंबाइन करके क्या बना लेंगे, लिम्फेटिक डक्ट बना लेंगे, लिम्फेटिक डक्ट। ओके, दिस इज द राइट थोरेसिक डक्ट एंड दिस इज द लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। ओके, ये कंबाइन होती हैं, किनके साथ कंबाइन होती हैं, राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन के साथ, और ये फिर ये कंबाइन करके लास्ट में क्या बना लेती हैं, वेन्स, वेना कावा में जाके लास्ट में मिक्स हो जाता है ये लिम्फ। ठीक है, सो एट लास्ट हो क्या रहा है, जो भी लिम्फ टिश्यू में एक्यूमुलेट हुआ था, ब्लड से लीक हुआ था, वो कहाँ वापस जाके एक्यूमुलेट हो गया, कहाँ जाके मिल गया, लास्ट में ब्लड में ही मिल गया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, उस पूरा प्रोसेस स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, और फिर जाके बाद में हार्ट में मिल रहा है, तभी हम कह रहे हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, बॉडी से हार्ट में जा रहा है, हार्ट से बॉडी में नहीं आ रहा है डायरेक्टली। ठीक है, सिर्फ ब्लड से लीक हो रहा है, जब एक्सचेंज हो रहा है कैपिलरीज पे वेरियस सब्सटेंसेस का बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सेल्स। ओके, एक और चीज़ होती है, वो क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन द प्रीवियस क्लासेस दैट ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन villi are present. Villi are the small structures, finger-like structures or projections present on the surface of small intestine. Right? What is the function of these villi? Do let me know. Pause the video and do comment your answer. Okay? What is the function of villi? On the villi, what happens when there is present a structure called as lacteal? Lacteal is present. Okay, and on the lacteals there is a sac like structure is present called as chyli cisternae.
Chyli cisterni. A duct arises from this chyli cisterni and it gets joined to the left thoracic lymphatic duct. Okay, and this left thoracic lymphatic duct will again join to form the vena cava. लिम्फ किस में फ्लो किया है? लिम्फ फ्लो होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फ वेसल्स में जाता है, लिम्फ वेसल से लिम्फ वेन्स में चला जाता है और फिर उसके बाद हार्ट में पहुंच जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द लिम्फेटिक ऑर्गन्स। देयर आर सम लिम्फेटिक ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, एंड हाँ, एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली है, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो ब्लड कैपिलरीज से किस वे में डिफरेंट हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज थोड़ी सी ज़्यादा वाइड हैं ब्लड कैपिलरी से, और इसमें जो पोर्स हैं, जो पोर्स प्रेजेंट है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, उनका साइज जो एज कम्पेयर टू द ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा बड़ा है। उससे क्या हो जाएगा, जो लार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट है इन द टिश्यू फ्लूइड वो भी लिम्फ कैपिलरीज में फ्लो कर जाएंगे। ओके, और फिर वो आगे जाके कहाँ पे वापस और फिर जो प्रोटीन लीक हो गया, इसका मतलब बॉडी से, ब्लड से, वो कहाँ वापस जाके ब्लड में ही मिल गया है। सो वेस्टेज को एक तरह से कम कर रहा है, ये मिनिमाइज कर रहा है। जो भी लीकेज हुआ है ब्लड से एसेंशियल प्रोटीन्स का, ठीक है, प्लाज्मा का, WBCs वगैरह का, वो क्या कर रहा है, लिम्फ उसको वापस ब्लड को ही वापस कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी लिम्फ इम्पॉर्टेंट है। लिम्फेटिक सिस्टम ज़रूरी क्यों है ये आप लोगों को पता लग गया होगा, आई होप। So now comes the turn of lymph organs. There are majorly 5 lymph organs present in our body. First one is lymph nodes. Lymph nodes, नोड से पता लग रहा है, नोड्स हम बहुत नॉर्मली भी हमें पता होता है नोड्स क्या होती हैं, जो गांठें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उनको नोड्स बोला जाता है जनरली। तो लिम्फ नोड्स क्या हो गए, जो लिम्फ वेसल्स हैं, जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, उसके बीच में जो भी नोड्स प्रेजेंट हैं उनको क्या बोल रहे हैं, लिम्फ नोड्स। as you can also see in the diagram also, there are large number of lymph nodes present. तो lymph nodes का function क्या है, जो the bacteria or germs from outside get trapped and killed in the lymph nodes. Bacteria and germs. Okay. Spleen, you all know that spleen is a structure near the stomach. स्प्लीन को क्या बोलते हैं? स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। वाई वी आर कॉलिंग इट एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज? बिकॉज जो भी आरबीसी रप्चर हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, बिकॉज आरबीसी का एक लाइफ स्पैन होता है, तो एक लाइफ स्पैन के बाद वो आरबीसीज डेड हो जाते हैं। तो डेड होने के बाद वो आरबीसीज कहाँ चले जाते हैं? स्प्लीन में चले जाते हैं। सो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। इफ यू टॉक अबाउट इन केस ऑफ lymph, spleen is the largest lymphatic organ. It is the largest lymphatic organ. Spleen is the largest lymphatic organ. Okay, next comes the turn of thymus. Thymus is a gland present near the throat, or you can say present in the neck. Gland in neck. This is also a lymphatic organ. Then comes the tonsil. I hope you might have heard about the tonsils. Tonsils are present in mouth, you can say, or the buccal cavity, the pharyngeal region. Okay, and Pierce patches, they are present in small intestine. Small intestine. I hope you all have heard about this Pierce patches. So all these are the lymph organs. So what is the function of lymph organ? लिम्फ ऑर्गन का फंक्शन क्या है? ये ट्रैप कर लेंगे बैक्टीरिया को, उनको किल करेंगे, ठीक है, मेनली ये सारा फंक्शन है लिम्फ ऑर्गन का। लिम्फ ऑर्गन के में क्या प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली लिम्फ प्रेजेंट है, और इसमें क्या प्रेजेंट है? एक चीज़, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करेंगी? एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट है, राइट, लिम्फ में लिम्फोसाइट्स, और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को। So the main basic function, लिम्फ में क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज एंड द लिम्फोसाइट्स। सो और ये मिलके क्या करेंगे? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। सो द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ विल बी प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीजेस, राइट। ठीक है बच्चे, समझ आया यहाँ तक? आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि लिम्फ की ज़रूरत क्यों है। अगर लिम्फ एक्यूमुलेट होता रहेगा, वहाँ से ड्रेन आउट नहीं होगा लिम्फ कैपिलरी में, या लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो नहीं करेगा,
तो उससे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक डिजीज़ होता है, उस डिजीज़ को बोलते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो लेग होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। क्यों मोटा हो जाता है? क्योंकि लेग में जो टिश्यू फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो गया, टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। उससे क्या हुआ, टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट तो हुआ, वो तो होता ही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया और वो बाहर नहीं निकल पाया, वो लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं ड्रेन हो पाया और वो वहीं पे टिश्यू में ही एक्यूमुलेट होकर रह गया, जिससे कि क्या हो गया, एलिफेंटियासिस। जिससे क्या हो गया, एलिफेंटियासिस, जो इसको क्या बोलते हैं, हाथी पैर भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सो दैट इज़ वाई जो लिम्फ है, लिम्फ का और यू कैन से टिश्यू फ्लूइड, उसका ड्रेन होना लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो एलिफेंटियासिस वॉज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ diseases caused by the accumulation of tissue fluid. Now let's talk about the last topic, that is the function of lymph. Why lymph is important? What are the functions performed by the lymph? Lymph are the ones that protect the body, that protect our body by killing the germs. कौन से germs? That are drained out of the body tissue. Okay, and that will be killed with the help of lymphocyte present in the lymph. All right. Next is the removal of waste. Lymph help in removal of waste like fragments of dead cells, etc. Okay, and the third one is it help in carrying the digested fat from the small intestine. Mind that we are talking about digested fat. Okay, and the last one is it help in flow of large protein molecules. जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टिश्यू के अराउंड प्रेजेंट होते हैं उसको भी सर्कुलेशन में इंक्लूड कर रहा है कौन, लिम्फ। लिम्फ की हेल्प से वो सर्कुलेशन में इंक्लूड हो रहे हैं, अदरवाइज वो ब्लड में नहीं जाते ना, कैसे जा पाते टिश्यू से ब्लड में। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिम्फ। आई हैव you can see in the diagram also that this is the lymphatic system of human body. Like you can see that there are a number of lymph nodes present here, trapping the germs, etc. Right? So this was all about the lymphatic system. So in today's lecture we have covered the heart, structure of heart, functioning of heart, steps of circulation of blood in our human body, and the lymphatic system. So yes students, this was all about today's lecture. In today's lecture, if you have any doubt, don't hesitate to put your question in the comment box. I'll be glad to answer your questions. I hope this video helped you in getting some better understanding regarding the topic. The next part of the video that will be containing the transportation in plants will be uploaded soon. So till then, take care, bye bye, have a good day and keep smiling. Thank you guys.